Today we are very excited to welcome someone who has been making a real impact in the community. From improving the education, healthcare and infrastructure in his constituency to ensuring that even the most remote areas have access to essential services. He has been an elected 5-time member of the Legislative Assembly and represented his constituency. From advocating for farmers to enhancing local schools and hospitals, his efforts have brought tangible improvements to many lives. Ladies and gentlemen, boys and girls, can we please have one last round of applause for Mr. M.Y. Tarigami. Thank you. First of all, I feel sorry for being late, a bit late, but despite the security concerns and all that, I overlooked the protocol and came running. Do you know why? I don't know much about your organization, but I certainly know my own children, boys and girls here. Love you so much. That is something which is, for me, a driving force of the society. It's not just poetic expression that you are the future of our society. It is, for me, it is something which is real, quite real. And I mean it. That's why some of my friends got a little disturbed today because I defied their it and came running here. I said, you might be waiting for a person whom you know very little, but certainly you might be feeling that somebody is coming who is one among us. That is something which is a strong link between you and me. मैं गैर नहीं हूँ, पराया नहीं हूँ, और अपनों ने बुलाया है, दौड़ गया। Sir, in front of us is a right living example of a true role model. He defied his security. He did not wait for his security because he wanted to interact with you all and did not want to make you all wait. So, sir, starting with the very first question, you grew up in Tarigam village. Were there any people or moments in your childhood that made you want to help others or join politics? Why are you, again I must tell you, this is traditional way of talking. कुछ ट्रेडिशन से हटकर बात करें आज। सवाल पूछे मैं जवाब दूं, लिख कर लाए, मैंने भी याद किया होगा। ना यार, ये झंझट है, ये झंझट से बाहर आना है। मैं सुनने के लिए आया हूँ। Feel free today. Ask anything about me, about anything you want to know from me. कुछ भी। और मैं भी सवाल कर लूँगा अपनों से, जानना चाहता हूँ अपनों के बारे में। But absolutely, sir, the question. So my first question is, please. मेरी आदत क्वेश्चंस का जवाब देना ही नहीं है, बल्कि खुद क्वेश्चंस पूछने का आदी हूँ। आदी। सब्र से काम लीजिए। और ये टैगोर हाल, you know who is Tagore? Who was Tagore? मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। मैं घर से निकला, नज़र पड़ी, क्या वहाँ देखा टैगोर की फ़ोटो है, कुछ लिखा है, और टैगोर ने कहा था, वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, ए ग्रेट थिंकर, ए ग्रेट थिंकर। आज मैंने खबर भी पढ़ी कि वहाँ शोले भड़क रहे हैं बंगाल में। आज वहाँ कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान बना है।
कोई हिंदू अलग से बंगाल को देखता है, कोई मुसलमान एंगल से। लेकिन मैंने ये देखा कि यार टैगोर भी वहाँ था। टैगोर क्या कहता है, अगर आज जिंदा होते तो क्या कहते? उन्होंने तब कहा था, पैट्रियाटिज्म सरहदों की लकीरों से जाना नहीं जाता है। प्लीज नोट इट। पैट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म की बुनियाद सरहदें नहीं, वैल्यूज। ये उन्होंने कहा था और आज मैंने वो वैल्यूज जलते हुए देखे हैं उस वतन में जिसका नाम बंगाल है। अफसोस होता है यार। मैं कुछ न दे सकूं आपको, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस हाल में आप हैं उनकी मैसेज क्या थी। सरहदों की दीवारों से हटकर भी सोचना है, और परवाज़ ऐसी हो कि कोई दीवार हो उसको भी पार करे, उसका भी सामना कर ले। ये आज मेरी तरफ से आपको थोड़ा सा क्या कहिए, मेरे पास है क्या देने के लिए, लेकिन इतना ही है कि लंबी उम्र और इस लंबे सफ़र में आप लर्न टू डिफाई द रेट ऑफ पावर्स। जो अहले इक़्तिदार है, ताकतवर लोग हैं, जिनको ताकतवर कहा जाता है, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, जाहो हशमत है, यारा उनसे कह दो कि ये दुनिया हमारी भी है। ये आज का कोट होना चाहिए आज की महफिल का। और आगे आप नाराज़ ना होना, आप अपना सबक पढ़ाइए मुझे, मैं अपनी बात कहूँगा। बिल्कुल। यस। सो करंटली सर, इफ़ वी सी, जो इंडिया में मोर देन हाफ ऑफ इंडिया, उनका एज ब्रैकेट इज़ अंडर 35 years of age, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया। सो वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। सो आप मुझे बताइए, हाउ कैन वी गेट यंग पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन टू पॉलिटिक्स एंड इन टू क्रिएटिंग अ टैंजिबल चेंज इन द सोसाइटी? Because we are really in need of young leaders to create change. मैं सिर्फ देखिए, मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया, मैं एक गरीब किसान घराने से मेरा ताल्लुक़ रहा है, बहुत नज़दीक है, आप जा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कुछ बुज़ुर्ग अब भी मौजूद होंगे वहाँ, और उनकी गोद में पला हूँ मैं बड़े घराने से, यानी किसी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं हूँ, और मेरे घर में वो साजो सामान नहीं था। वो खेत के साथ झगड़ते थे, खेत के साथ, और तब जाकर वहाँ से कुछ फसल मिलती थी, उस पर गुजारा करते थे। मेरी माँ भी ऐसा करती थी। मेरा बाप बचपन में मरा, देखा भी नहीं पूरा। मेरे भाई, उन्होंने मुझे पाला पोसा, और उन्होंने यही पत्थरों से अनाज निकालने का अमल अपनाया, और मुझे उसी माहौल में सांसें लेने का मौका मिला। और इस वजह से ये, जब आप सियासत की बात करते हैं तो सियासत या तो ऐसा है कि यार घर में बैठकर भी हमारे माँ बाप कहते हैं यार इनसे दूर रहो। सियासत ऐसा नाम बन गया है जैसे झूठ कहना, दिन को रात कहना, झूठे वादे करना और लड़वाना, धर्म के नाम पर, अकीदे के नाम पर, मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सियासत ये भी है कि जहाँ नंदऋषि पैदा हुए, आपने नाम सुना होगा, शेखुल आलम भी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने कहा था
सारी समाओ एक्सी रजलमा अदमा राये कान का। I get inspiration from these things. Please try to understand it. He was a great saint. और कई वर्ष पहले यहाँ इस दुनिया को अलविदा कहकर गए, लेकिन ये बात आज भी how prophetic it is, how relevant it is, जो आज भी टाइम से गुजर रही है, नॉट ओनली कश्मीर बट द होल वर्ल्ड। कोई भी आप सवेरे उठो शाम तक खबर यही होती है, उधर झगड़ा इधर झगड़ा, उधर गोली इधर गोली, उधर धमकाना इधर धमकाना। कुछ अच्छी खबर मिलना आज टीवी स्क्रीन पर मुश्किल बन गया है। हेडलाइन अच्छी खबर से नहीं, कोई भी अखबार पढ़ ले, पार का अखबार, यहाँ का अखबार, कराची का डॉन पढ़ लीजिए, यहाँ का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, तो हेडलाइंस और वो डिटरमिन नहीं होते हैं कि समथिंग गुड हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हेडलाइन समथिंग बैड इज हैपनिंग, समथिंग वर्स्ट इज हैपनिंग, कितने मरे। माई पॉइंट इज आई डोंट वांट टू, आपका वक्त मैं ज़ाया नहीं कर लूँगा। तो जब आप लीडरशिप की आप बात करते हैं, लीडरशिप घर से भी शुरू होती है। माँ बाप, माँ लीडर होती है मेरे बेटे, माँ लीडर होती है। मुझे तो माँ ने ही, बाप गुजर गया था, उठना बैठना पालना पोसना वगैरह सिखाया, अपनी नींदें हराम करने वाली माँ। मैं जब जेल में था वो अलग कहानी है, जिक्र करना ज़रूरी है। मैंने एक किताब मंगवाई वहाँ, ऑथर वाज फ्रॉम रशिया, मैक्सिम गोर्की, अ ग्रेट राइटर। हो सके, इट्स नॉट दैट ही वाज हैविंग वन पॉइंट ऑफ व्यू, ही वाज ग्रेट इन द सेंस लिटरेरी फिगर, इंटरनेशनली रिनाउंड लिटरेरी फिगर थे। वो डंडोरची नहीं थे, आलिम थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका ट्रांसलेशन लगभग हर जुबान में हुआ है, विच इज़ मदर। मैंने मंगवाई वो मदर, माँ उसका तर्जमा उर्दू में पढ़ा, माँ, और मुझे लगा जैसे मेरी माँ की अक्कासी कर रहा है अपने उसमें। माँ हर एक की माँ, उसकी गोद में मैं पला हूँ, आप पले हैं। और लीडरशिप कम्स फर्स्ट डे फ्रॉम आवर मदर इज माई लीडर। काश वही लीडरशिप मुझे मिलती रहे, उठने बैठने में, लाइफ का ये सफर तय करने में। मदर कभी ये नहीं कहती है कि उसको देने के लिए कुछ ना हो, दूध भी ना हो, तब भी वो बच्चे का रोना सिसकना उसे गवारा नहीं। किसी भी माँ खुद रोती है, लेकिन बच्चे के आंसू उसे मंजूर नहीं। ये लीडरशिप है। ये लीडरशिप समाज को मिले, आंसुओं में कम से कम कमी आ जाएगी, दर्द में कुछ कमी आ जाएगी। तो यार लीडरशिप और पॉलिटिक्स, आज बहुत सारे लोग, बड़े लोग जो है वो दर्द बढ़ती गई जो दवा की, जितने ज़्यादा दवा की कि सर दर्द कम हो जाए, लेकिन ऐसी दवा देते हैं हमारे डॉक्टर, पॉलिटिकल डॉक्टर आजकल, जिससे दर्द बढ़ती ही जाती है। और इसीलिए डॉक्टर मीन्स व्हाट, कि वो हमारे एलिमेंट को डायग्नोज कर ले सही ढंग से और हमें मशवरा दे, इलाज करे। समाजी हैसियत में डॉक्टर लीडर है, डॉक्टर लीडर है।
और डॉक्टर हमेशा कोई वो नहीं है प्राइवेट क्लिनिक पर जाता है तो पैसे कमाने वाला, वो पैसे लेता है, फीस ज़्यादा लेता है। ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन अक्सर डॉक्टर का पेशा है नब्ज़शनास बनना, डायग्नोज करना और दर्द का इलाज वज़ा करना, प्रेस्क्रिप्शन वो देना। समाजी हैसियत में एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक टीचर यहाँ का लीडर है इस इंस्टीट्यूशन का। टीचर इज द लीडर। तो टीचर को ये नहीं है कि तनख्वाह आपकी कितनी है यार, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, गिला उनसे और सज़ा इनको ना देना, तब जाकर ही आप इनके लीडर बन सकते हैं। मैं शायरी नहीं करता हूँ, मैं दिल की बातें करता हूँ अपने बच्चों के साथ। अगर आपको गुबारा ना हो बाद में माफ़ करना मुझे कि टाइम लिया आपका, लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगे यार उस पर सोचना। तो सोसाइटी में लीडर इज नॉट जस्ट एन MLA, इट्स नॉट जस्ट ए पार्लियामेंट मेंबर। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन रोल, no doubt. Assembly has the role, Parliament has the role, but sometimes I feel that even assemblies fail to play that role, parliaments fail to play that role. तो आप मुझे बताइए क्या कुछ कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज तो ऐसा लगता नहीं है मुझे, नजर लग गई। ये सारे जहां से बना था जब at one point of time there was a person from Punjab, सिख घराने से ताल्लुक था, young person, the young, very young, भगत सिंह नाम था। राजगुरु सुखदेव यूपी के थे, अशफाक उल्लाह भी था। Try to understand it. भगत सिंह was a Sikh, राजगुरु सुखदेव हिंदू कम्युनिटी के साथ, and then Ashfaq Ullah was from a Muslim community. All the four. उनमें एक जुनून पैदा था, एक इश्क पैदा हुआ था, क्या हमारा वतन गुलाम न रहे, हम खुद अपने मामला संभाले। फांसी के फंदे को चूमा और चारों ने गाया, ये वतन हमारा है। आज अशफाक उल्लाह अलग है, आज भगत सिंह अलग है। ये नहीं भगत सिंह शहीद है, वो सरदार बन गया। आज राजगुरु सुखदेव आज शहीद कम हिंदू बन गया। अशफाक उल्लाह वो शहीद कम मुसलमान हो गया। यार वो तो ठीक है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, गिरजाघर में जाए, मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, यार ये तो अधिकार दे दो ना एक बच्चे को, बच्ची को, इंसान को, जाने दो ना। तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर कोई अपने ढंग से परमात्मा को पहचाने, खुदा को पहचाने? क्यों दीवार बने हो इसके बीच में? और हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही सीखा था, जिन्होंने कहा था हम एक आर्डर में जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने एक किताब तैयार की, बड़े लोग थे, बहुत ज़्यादा वहाँ बहस हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही प्रेम लाभ से मुखातिब होकर वक्त हुआ, मैं जाऊँगा, आप इशारा मुझे देंगे, दरवाज़ा खुला रख लीजिए, मैं दौड़कर रुखसत दे दूँगा, लेकिन कुछ कहूँगा आप से। मैं कोई कहानी सुनाऊंगा नहीं आपसे, मैं वो सुनाऊंगा जो मैं महसूस करता हूँ। दर्द है आज हमारी सोसाइटी में, मैं दर्द बांटने के लिए आया हूँ। और दर्द ये नहीं ना मेरे पास इलाज ना आपके पास इलाज, लेकिन इतना ज़रूर है
बात करूं मैं अपनों के साथ, वो मेरे साथ बात कर ले, ताकि इलाज कहीं से मिलने की दौड़ शुरू करें। आज क्या है यार, कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक भी जगह नहीं लिखा है वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियन, वी द सिख्स ऑफ इंडिया। प्रीम्बल में लिखा है द फर्स्ट आइटम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन में वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे पीपल में ये नहीं लिखा है, किसका नाम क्या है? Unfortunate. Today that very constitutional order is getting somewhere subverted. आज ये कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं वगैरह का हूँ, और हमारे लोगों ने उस वक्त क्या बताऊंगा मैं रिश्तों के बारे में कहा जाता है कश्मीर के बारे में बहुत में कि हम पत्थरबाज हैं, हम पत्थर चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, और ये कोई नहीं कहता है कि यहाँ कब्रिस्तान भी बड़ी तादाद में बन गए हैं। हम कौन मरा यारा, कौन मरा और किस गोली से मरा? मेरा ही मरा। कौन मरा, किस गोली से मरा? उधर की गोली से मरा या इधर की गोली से मरा? किसी का बेटा ही तो मरा। ये दर्द, इस दर्द को आप उसमें नहीं कौन जिम्मेदार है कौन नहीं ना, आपका वक्त बर्बाद मैं नहीं कर लूंगा। मैं आपका वक्त लेना चाहता हूं कि आंसू की बहतात रही है मेरे समाज में, जहां मुस्कुराहट थी कभी, मुस्कुराहट गायब है। हाथ मिलाए हम आज और समाज की इन कठिनाइयों का सामना भी करें और कुछ इलाज का रास्ता भी ढूंढे। लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, दर्द को समझना और दर्द का इलाज ढूंढना। क्या खूब दर्द को समझना और दर्द का इलाज। एंड व्हाट ही मेंशन एट द स्टार्ट दैट लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम होम, कि आपकी घर पे आपकी मामा ही सबसे पहले आपको लीडरशिप के रोल सिखाती है कि वो एक लीडर है। और वैसे ही आपको हर महल्ले पे आपको हर जगह एक लीडर का सामना होता है आपको, चाहे वो आपका टीचर हो या कोई भी आपका दोस्त भी आपकी लाइफ में।